Hello everyone. Today we discuss energy level diagram for molecular orbital. Our topic is energy level diagram for molecular orbitals. Okay. As we have seen in the last video lecture, the atomic orbitals combines to form molecular orbital. So different type of atomic orbitals combines to form different type of molecular orbital, and the relative energy of the molecular orbitals depends upon two factors. First one is the energy of the atomic orbital combining to form molecular orbital. Second one is extent of overlapping between the overlapping. As we have seen in the as we have studied in the last video lecture, that is related to the molecular orbital theory. Greater is the overlapping, lesser is the energy, and larger is the stability. So first factor is the energy of the atomic orbital combining to form molecular orbital. That means, suppose we have an atom that have s atomic orbitals and p atomic orbitals. S atomic orbitals combines to form sigma 1s and sigma star 1s, and p atomic orbital combines to form sigma 2pz, pi 2px, pi 2py, sigma star 2pz, pi star 2px, and pi star 2py orbital. That means the energy of the atomic orbitals combines to form molecular orbital. S की एनर्जी कम होती है, that means these orbitals have lower energy, and these are atomic orbitals, these are molecular orbital from the p type atomic orbital that have higher energy. So first point is this one. Second point क्या कहता है, the extent of overlapping between the atomic orbitals, कि जो extent of overlapping है atomic orbitals में वो किस तरह का है. s orbital की शेप spherical होती है, तो extent of overlapping उसमें मैक्सिमम रहता है. मैक्सिमम एक्सटेंट रहेगा तो एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. मैक्सिमम ओवरलैप. ओके. एंड पी ऑर्बिटल की शेप होती है डंबल टाइप, और इन द केस ऑफ पी ऑर्बिटल देयर इज एन जो ओवरलैप रहता है वो मिनिमम ओवरलैप होता है. पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, जो ओवरलैप रहता है वो कम ओवरलैप होता है इन द केस ऑफ द p orbital. So these two factors that decided the energy of the molecular orbital. So greater the overlap, more is the bonding energy, more is the energy of the bonding orbital is lowered, and anti-bonding molecular orbital is raised in energy. हाँ, एक चीज का अपने ध्यान रखना है, जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी कम होती है. बॉन्डिंग molecular orbitals has lower energy, and anti-bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital has higher energy. ओके. ये अपने ध्यान रखना है. इसको हम एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको एस्ट्रिक बोलते हैं, स्टार लगा देते हैं हम यहाँ पे, सिग्मा
सिग्मा स्टार ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। ओके, सो फ्रॉम द मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ द फर्स्ट रो एलिमेंट में हमारे पास कौन कौन से हैं? बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। सो सबसे पहले तो इसमें क्या आएगा? सिग्मा 1s। Sigma 1s combines to form 1s orbital combines with 1s atomic orbital to form sigma 1s molecular orbital and sigma star 1s antibonding molecular orbital. Okay. नेक्स्ट सिग्मा 2s, क्योंकि हमारे पास s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है। अगर हम फर्स्ट रो एलिमेंट की बात करते हैं, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ओके, लिथियम भी इसी में आता है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ये हमारे पास फर्स्ट रो एलिमेंट है। इन सभी में s ऑर्बिटल है एंड p ऑर्बिटल है। So that means s atomic orbital and p atomic orbital combines to form molecular orbital. ओके, सो यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, वो मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन कौन सी होंगी? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। द मीन्स इक्वल साइन मीन्स क्या है? पाई 2px and pi 2py bonding molecular orbital have same energy. Equal sign means bonding molecular orbitals have same energy. Okay, these orbitals have been written in the increasing energy pattern. Sigma 1s की energy सबसे कम, then sigma star 1s, after that sigma 2s, then sigma star 2s, then sigma 2pz, then pi 2px, pi 2py, pi 2pz. ओके, और जो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी लिखी गई है, ये वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। एनर्जीज ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैव बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। दैट इज not our syllabus topic ki how the different type of orbitals different type of atomic orbitals combines to form molecular orbital and how their energy is calculated, that is calculated by spectroscopic method. just आपको ये पता होना चाहिए कि जो एनर्जी का जो पैटर्न है वो इस तरह से रहेगा। ओके, बट इसमें भी थोड़ा सा एक आपको मॉडिफिकेशन मिलेगी आगे जो हम डिस्कस करेंगे। जो ये पैटर्न है एनर्जी का, वो पैटर्न है सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन के लिए जो एनर्जी पैटर्न है वो डिफरेंट है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो एनर्जी लेवल ऑफ डिफरेंट मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, यहाँ पे हम किसी एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात करेंगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होके जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके मोलिकुलर ऑर्बिटल बना रही है, और जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी किस तरह से है। इसमें यहाँ पे 1s भी होगा, उसको हम राइट डाउन नहीं करते। 2s 2s आपस में कंबाइन होके सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, आफ्टर दैट सिग्मा 2pz, pi 2px, pi 2py, बिकॉज़ यहाँ पे क्या है? px, py, pz, this one is the atomic orbital of one atom and this is the atomic orbital of another atom, combines to form molecular orbitals px, py, pz. As we have seen in the previous video lecture of molecular orbital theory, the pz आपस में कंबाइन होकर बनाती हैं sigma 2, sigma pz, okay, and px plus px gives pi orbital,
and py plus py orbital give pi orbital. This is the linear combination of atomic orbitals to form molecular orbitals. ओके, यहाँ पे मैं एडिशन एडिशन मैंने दिखाया, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो पाई स्टार वहाँ पे स्टार एस्ट्रिक हमें वहाँ पे लगाना है। ओके, सो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को स्टडी किया गया डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, तो वहाँ से क्या क्लियर हुआ कि जो ये एनर्जी पैटर्न है सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पाई, सिग्मा 2pz की एनर्जी कम है, पाई 2px पाई 2py की उससे ज़्यादा है, देन पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, ये सिर्फ बोरोन और सॉरी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तक है। ओके, दिस ऑर्डर इज करेक्ट ओनली फॉर द मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये ऑक्सीजन ऑनवर्ड, जो ऑक्सीजन ऑनवर्ड अगर हम बात करें, ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन ऑनवर्ड आता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ओके, फॉर द केस ऑफ द lithium, beryllium, carbon, nitrogen, the energy of sigma 2pz is greater than pi 2px pi 2py. But in the case of the oxygen and fluorine, the energy of sigma 2pz is less than pi 2px and pi 2py. इसके पीछे रीजन क्या है हम उसको देखेंगे। ठीक है, जो इसके पीछे जो रीजन दिया गया है कि लिथियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन के लिए जो एनर्जी है सिग्मा 2pz की ज़्यादा है एज कंपेयर टू पाई 2px एंड पाई 2py। उसके पीछे रीजन क्या है कि जो ये एटम्स हैं उनकी जो सिग्मा इसमें हम बात करें अगर एस और पी ऑर्बिटल, सिग्मा 2pz जो ऑर्बिटल्स बनता है वो बनता है pz के कॉम्बिनेशन से। अगर हम इसमें बात करें सिग्मा 2s, जो सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s are formed by the combination of 2s atomic orbital, and sigma 2pz formed by the combination of the 2pz atomic orbital. 2pz plus 2pz gives sigma 2pz and 2pz minus 2pz gives sigma star 2pz। ओके, और जो लिथियम ब्रोन कार्बन नाइट्रोजन की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए जो एनर्जी है, लिथियम बेरिलियम, इसमें बोरोन भी आता है, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, यहाँ पे B2 और आएगा। ओके, उसके लिए जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम एक बार देख लेते हैं। लिथियम के लिए है 178, बेरिलियम के लिए 262, बोरोन के लिए 449, कार्बन के लिए 510, नाइट्रोजन के लिए 570 एंड 430 एंड 1970। दैट मीन्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए जो एनर्जी डिफरेंस है इन 2s एंड 2pz ऑर्बिटल, 2s एंड 2pz ऑर्बिटल वो बहुत ज़्यादा है। बट लिथियम बेरिलियम ब्रोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए अगर हम देखें जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है। दैट मीन्स क्या कंसीडर मतलब क्या कंसेप्ट इसके पीछे दिया गया कि मे बी देयर इज एन मिक्सिंग ऑफ एस एंड पीजेड एटॉमिक ऑर्बिटल इन द केस ऑफ लिथियम बेरिलियम ब्रोन कार्बन नाइट्रोजन। सो ऑन द बेसिस of the energy difference in between 2s and 2pz orbitals for lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen is small, so that there is mixing of 2s and
2pz atomic orbitals. That means 2s and 2pz orbital की अगर मिक्सिंग हो रही है, that means s and pz orbital in the case of lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen is not pure atomic orbitals. ओके, दैट मीन्स एस ऑर्बिटल में कंप्लीटली एस करेक्टर नहीं है, उसके अंदर पी करेक्टर भी हो सकता है. जब एस और पी ऑर्बिटल का जो एनर्जी डिफरेंस कम है पीजेड ऑर्बिटल का, दैट मीन्स देयर इज एन मिक्सिंग ऑफ एस एंड pz atomic orbitals and are not pure atomic orbitals. That means s orbital have p character and p orbital have s character. ओके, तो उस केस में क्या होगा, जो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होगी, उसकी एनर्जी और कम होगी, सिग्मा स्टार 2s की आपस में कम होगी. बट अब क्या है कि एस ऑर्बिटल में जो pz ऑर्बिटल है उसके अंदर एस करेक्टर भी है. ओके, तो उस केस में क्या होगा, जो उसकी एनर्जी है वो ड्यू टू मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल है, क्योंकि उसके अंदर अब sp करेक्टर है. ओके, तो ड्यू टू द स्मॉलर एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, that there may be the 2s and 2p atomic orbitals in case of second row element up to nitrogen, not in case of oxygen and fluorine. There is maybe a mixing of atomic orbitals. So तो अपने ध्यान रखना है, जब हम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम स्टडी करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, जो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल होगी उसकी एनर्जी पाई 2px पाई 2py से ज्यादा होगी. दिस वन, इज द फॉर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. इस केस में जो सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी. आप इसको इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन के लिए 2 1 2 1, 2 1 2 1, एंड ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के लिए 1 2 1 2 ओके, सिग्मा स्टार 2pz की जो एनर्जी है वो हमेशा ज्यादा ही रहेगी. सो लेट्स राइट द different type of molecular orbital in increasing order of their energy. So for molecules, lithium, beryllium, boron, कार्बन, नाइट्रोजन, सबसे पहले क्या आएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, sigma star 2s. After that, pi 2px equals to pi 2py, sigma 2pz. After that, pi star 2px equals to pi star 2py, and after that, sigma star 2pz. And for oxygen and fluorine, for oxygen, fluorine, and neon, sigma 1s, sigma star 1s, sorry, sigma 2s, sigma star 2s,
sigma 2pz pi 2px equals to pi 2py because that have energy same. Pi star 2px equals to pi star 2py. Here is also star, and after that sigma star 2pz. ओके, ये आपको क्लियर हो गया. आफ्टर दैट there is some rules for filling the electron in the different type of molecular orbitals. According to above principle क्या है? Above principle आप सबने पढ़ा हुआ है. The molecular orbital have the lowest energy is filled first. That means जिस molecular orbital की energy कम होगी उसको हमें पहले fill करना है. That means sigma 1s सबसे पहले fill होगा. After that sigma star 1s, then sigma 2s, then sigma star 2s. After that, in the case of lithium beryllium, firstly हमें fill करना है pi star 2px, pi 2px, then pi 2py, then sigma 2pz, and so on. And according to Pauli exclusion principle, each molecular orbital can accommodate a maximum of 2 electron having opposite spin. That means Pauli exclusion principle क्या कहता है? Maximum 2 electron with opposite spin. Maximum 2 electron with opposite spin. And इसमें lower energy first. मैं short form में लिख रहा हूँ, lower energy orbital first. After that, third Hund's rule of maximum multiplicity क्या कहता है कि if there are two molecular orbital of the same energy, the pairing of electron will occur only after each orbital have one electron. That means हंट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे टू ऑर्बिटल्स हैं पाई 2px पाई 2py, सो हमें पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करना है फिर इसमें फिल करना है. हमें ऐसा नहीं करना कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें हम फिल कर दें और इसको हम वैकेंट छोड़ दें, ये यहाँ पे इस तरह से, तो ये आपका नहीं होगा हंट्स रूल के अकॉर्डिंग, ये करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, सो आई थिंक इस वीडियो लेक्चर को हमें यहीं पे एंड कर देना चाहिए. इसके बाद हम जो बॉन्डिंग है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में उसको स्टडी करेंगे कि हाउ द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, हाउ द मोलिकुलर ऑर्बिटल हेल्प्स इन डिसाइडिंग द बॉन्ड ऑर्डर्स एंड देयर magnetic character of the different type of molecules. Okay, so in this video lecture हम इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं. In the next video lecture we discuss the bonding in homonuclear diatomic molecules or heteroatomic diatomic molecules. Okay, so thank you.